Hello, aspirants. Welcome back again to Saturday's CSAT session. After a long time, we are back with this initiative. In between, there was a gap as I was not getting good response, so I stopped making the videos. But however, so many people have requested on the Telegram, and also the students who are part of our M360 program also said, sir, we would like to have those videos of previous year questions from CSAT sections. So there are three topics which are pending as part of our M360. I'll be doing videos on them as well. So today's topic is mixtures. So as usual, when I have looked at the previous year questions, see this was the trend that I have seen. Not so great from the perspective of examination, from the perspective of an aspirant, but however the questions do come. For example, in the last 11 years, 4 questions have been asked. See, from 2015 to 2017, every year there was a question from this section. Then there was no question in 2 years, 18 and 19. Again, 20, there was a question. And in the recent times, including 2023, there was no question. But it is always good if we are prepared for this, because we don't know whether it is going to be there in 2024 or not. So it is better be prepared, and the topic is very simple and useful one as well. So let us look at some of these 4 questions and try to solve them. On the basis of it, let us try to use the knowledge of it in order to solve more and more questions, so that if these questions come in any of your UPSC examination or state PCS, or let's say other exams conducted by UPSC or other competitive exams, it can be useful to us. So let us begin the questions. The first question is, which was asked in 2015, two equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. तो 2 ग्लासेस में, एक में 1/3 एंड दूसरा में 1/4 मिल्क फुल कर रखा है, एंड दे आर फिल्ड विथ वाटर. द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फिल्ड विथ वाटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन ए पॉट. ये दोनों ग्लासेस में जो पानी और दूध का मिक्सचर है वो दूसरा वेजल में मिक्स कर दिया है. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट, दैट इज बीन आस्क्ड. सी, एक सिंपल ट्रिक है, जब भी ऐसे प्रोपोर्शंस में दिखता है, ऑलवेज टेक दैट, लाइक ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही सॉल्व करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है, दो जो प्रोपोर्शंस में दिया है उनका एलसीएम ले लो, उसको एक्चुअल नंबर मान लो, देन इट विल बी इजी टू सॉल्व देम. सो व्हाट आई मीन बाय इट, सी आपके पास 2 ग्लासेस है, एक में 1/3, एक में 1/4 ऐसे दूध भरा है, बाकी जो है पानी है, राइट. So if I wanted to like assume what could be the final or full capacity of it, if I take the LCM of this, तो दोनों का बराबर आएगा. So what is the LCM? 12. Let's take 12 is the total volume of the glass. 12 liters or let's say 12 milliliters, whatever it is. अब 12 units में से 1/3 बता रहे हैं. So what is 1/3? This is 4 units. एंड यहाँ पर 1/4 बता रहा है. 1/4 मतलब 3 यूनिट्स. मतलब पहले वाला वेजल या पहले वाला ग्लास जो है उसमें 4 यूनिट्स मिल्क है, रेस्ट ऑफ द यूनिट्स कितने हैं, बाकी बचा हुआ 8 यूनिट जो है दैट इज पानी. सेम हियर 3 यूनिट्स मिल्क है, रिमाइनिंग 9 यूनिट्स जो है वो पानी है. अब ये पूरा मिक्सचर को एक बड़ा सा वेजल में लेकर जाके डाल दिया, और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सी, सिंपली वेजल बदला है, कोई मिक्सचर का कंटेंट्स वगैरह नहीं बदल दिया. सो इसका मतलब क्या है, व्हेन दिस इज पोर्ड इनटू इट, कितना टोटल कितना मिल्क का यूनिट रहेगा, मिल्क विल बी 4 + 3 दैट इज 7 यूनिट्स ऑफ मिल्क, एंड पानी कितना रहेगा 8 + 9, 8 + 9 दैट इज 17 यूनिट्स ऑफ वाटर रहेगा. तो अगर मुझे मिल्क टू वाटर रेशियो चाहिए, इट वुड बी व्हाट, 7:17, and the answer will be what, C. Simple. This is how we can solve this kind of questions. Now let us look at the second question. So it was asked in 2016. Question is, 30 grams of sugar was mixed in 180 ml of
वाटर इन ए वेजल ए, लेट्स से दिस इज ए वेजल ए विथ 180 ml, तो इसमें कितना 30 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला हुआ है, ठीक है। देन दूसरा केस है वेजल बी, जिसमें 40 ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 280 ml ऑफ लिक्विड, दिस इज द क्वांटिटी। देन सी इज देयर, जिसमें 20 ग्राम्स है इन 100 ml। सो दीज आर दी 3 कंडीशंस, ओके। सो हमें क्या बताना है, वेजल बी में जो लिक्विड है या मिक्सचर है, सो व्हाट इज इट्स स्वीटनेस, वेदर इट इज स्वीटर देन सी और स्वीटर देन ये, ऐसे कंपैरिजन में बताना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली कैलकुलेट द डेंसिटी, दैट इज ग्राम पर ml, ये किस में ज्यादा मिल रहा है आपको, वो वाला कवर कर लो। सो अगर कम वाटर में ज्यादा शुगर है, दैट विल बी द स्वीटेस्ट। सो यहाँ पर इफ आई कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इट, हियर 30 grams आर देयर इन 180 ml, so that means 1 gram is present for each ml of water. So this is the first case. Second case में देखेंगे तो 40 divided by 280, that means 1 divided by 7. That means 1 gram of sugar is mixed into water for every 7 ml. Then this one 20 divided by 100, that is 1 divided by 5. So 1 gram is mixed into every 5 ml. So we are talking about solution. See, a solution does have two components. One is called solute, another one is called solvent. सोल्यूट का मतलब जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट का मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट और शुगर इज द सोल्यूट। अब देखो, जिसमें कम पानी में शुगर ज्यादा है तो वहां पर आपका स्वीटनेस ज्यादा होगा, बट सिंस यहाँ पर हम 1 ग्राम का ही कंसिडर कर रहे हैं, सो शुगर का लेवल्स में तो बराबर ही है। बट पानी देखो, यहाँ पर 5 ml में 1 ग्राम ऐड कर रहा है, यहाँ पर 6 ml में, यहाँ पर 7 ml में। सो कम पानी में ज्यादा शुगर यहाँ पर हो गया, मतलब 5 ml में ही 1 ग्राम ऐड कर रहे हो, यहाँ पर है तो 6 ml, यहाँ पर है तो 7 ml। सो दैट मीन्स सी विल बी स्वीटेस्ट, इन तीनों में दिस विल बी द स्वीटेस्ट। सो सबसे ज्यादा स्वीट जो रहेगा वो सी रहेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि वेजल जो बी है इट विल नॉट बी एज स्वीट एज लेट्स से सी, और आल्सो वेजल बी इज नॉट गोइंग टू बी स्वीटर देन सी, क्योंकि इससे कम स्वीट ही रहेगा। एंड सेकेंड केस में क्या पड़ेगा हमें, ये आएगा, क्योंकि ये में क्या हो रहा है 1 ग्राम इन 6 ml, सो ये विल बी द सेकेंड। एंड थर्ड एंड लास्ट पोजिशन पे रहेगा C. That means even this is also false, and the only correct answer will be it is less sweet than that in C. This is how we can solve it. Now we can go to the next question. Question number 3. Question is, there is a milk sample with 50% water in it, and 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk. Then water in the new mixture will fall down to, मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि गिरेगा, ऑफ कोर्स इट विल फॉल डाउन, क्योंकि प्योर मिल्क में ऐड कर रहे हो, बट कितना परसेंटेज गिरेगा ये बताना है हमें। से यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रिक समझो, यहाँ पर बोल रहे हैं 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। ये इसका मतलब है कि जितना आप यहाँ पर मिक्सचर से जो अमाउंट ऑफ दिस मिल्क इज टेकिंग, the same amount of pure milk is taken and then they are added. ये 1/3 का जो है ना कोई लेने देना नहीं है, it's just to confuse us. So just to solve this, how do we begin? Let's say for this purpose of it, for your convenience, I am taking 300 liters initially. ठीक है। सो ये जो हमारा मिक्सचर जो है इनिशियल केस में जो मिक्सचर है, आई एम टेकिंग इट एज 300 लीटर्स। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग 300 लीटर्स, सो आई विल टेक इट 300 लीटर्स। और बोल रहा है कि इसमें 50% वाटर है, मतलब क्या है 150 लीटर्स वाटर है और रिमाइनिंग 150 लीटर्स मिल्क है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंट, मतलब ये मिक्सचर का बात कर रहे हैं हम, राइट। दिस इज द स्टोरी चलेगा। अब इसमें से मैं 1/3 मतलब कितना आएगा, 100 लीटर्स आएगा, right? That is the reason why I took 300 liters. 1/3, that is 100 liters of this mixture has been taken and it is added to equal amount of pure milk. मतलब 100 liters of pure milk भी लिया है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास 200 लीटर्स का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें 100 लीटर्स प्योर है, 100 लीटर्स में
50 liters pani or 50 liters milk is there, right? So this is the mixture that we have initially taken with 50% composition of water and milk. So we have this situation. So इसका मतलब है कि ये 200 liters में 50 liters are water, remaining 150 liters are milk. Simple. जो हमें चाहिए proportion आ भी गया. So out of 200, 50 liters are water, because we wanted to find what is the new levels of water in the mixture. So it will be 50 divided by 200, which is converted into percentages. If we convert it, it will come around to be 25%. So अभी नया मिक्सचर में जो पानी का लेवल है 50% ही कितना गिर गया, 25% गिर गया. That is the meaning of it. ठीक है. So this is third question. Now let us go to fourth question. See, question is, this is the last question as well. Question is, a bottle contains 20 liters of liquid A. Okay, let's say this is a bottle and यहाँ पर 20 liters के आसपास liquid A है. Okay, then इसमें से क्या किया था, 4 liters of A is taken out. इसमें से 4 liters is taken out A and it is replaced with B, same quantity. That means 4 liters of B has been added to it. ठीक है. सो अगर इसी लेवल पे बात करना है तो नाउ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जिसमें से रेशियो ऐसे है कि 16:4 होंगे, क्योंकि 4 लीटर्स ये हटाया, 4 लीटर्स बी ऐड किया. सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ इट. नाउ दूसरा केस में क्या पता है, अगेन इस मिक्सचर से, अगेन ये 20 लीटर्स का मिक्सचर से क्या कर रहा है, 4 liters of this mixture is taken out. Now the mixture is taken out. That means ये भी जा रहा है, यहाँ पर B भी जा रहा है. In the earlier case, only A is taken out, B is added. Now from the mixture we are taking it out. So 4 liters of mixture is taken, and to this 4 liters of B is added. So purely B add हुआ है. That means B का जो कंपोजिशन है वो बढ़ जाएगा और ये का कंपोजिशन है थोड़ा सा कम होगा. राइट, दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन नाउ वी हैव गॉट. एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर. मतलब ये वाला काम करने के बाद, दैट इज टेकिंग 4 liters ऑफ द मिक्सचर आउट एंड एडिंग 4 liters ऑफ ओनली प्योर बी. सो नया मिक्सचर अगेन 20 liters का ही बनेगा. ठीक है, तो इस 20 liters में ए एंड बी का क्या कंपोजिशन है वो पता करना है. सी आई वांटेड टू डू इट, बट इसमें और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो आई वुड लाइक टू गिव इट हैज होमवर्क टू यू. इजी है, यहां से आपको कवर करना है. सो देखो, ट्रिक बता देता हूं. आपके पास 16 यूनिट्स ऑफ ए है, 4 यूनिट्स ऑफ बी है, राइट, इस इन दिस मिक्सचर. नाउ मिक्सचर में से आप 4 यूनिट्स हटा रहे हो. दैट मीन्स से अगर इसका बात करेंगे तो कितने यूनिट्स होंगे, ईच ऑफ देम विल बी 16/20. इसका बात करते हैं तो 4 divided by 20 इन द एंटायर मिक्सचर. दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. अब लेट्स से 16 यूनिट्स में से क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा. कितना माइनस करना होगा, 16 divided by 20 into 4, क्योंकि मिक्सचर का 4 लीटर बता रहे हैं ना, 4 इतना हटा देना होगा. So this will give you the present A in the mixture. Then एक और केस जो है, that is अगर ये का है, अगर B का बात करना है, B will be, आपको B के लिए क्या करना होगा, 4 पहले था, 4 में से आपको रिमूव करना है 4/20 into 4. भाई अगेन इंटू 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 यूनिट्स ऑफ मिक्सचर आई एम टेकिंग एंड दैट मिक्सचर हैज 4 divided by 20 क्वांटिटी ऑफ बी. ठीक है, इतना हटाना है. लेकिन इतना हटाने के बाद आपको क्या करना होगा, +4 करना होगा, वो भी प्योर, क्योंकि ये 4 लीटर एडिशन हो रहा है ना. दैट विल गिव यू द क्वांटिटी ऑफ बी, प्रेजेंट बी इन मिक्सचर. अब इन दोनों का ही आपको कैलकुलेट, सिंप्लीफाई करके आउटकम निकालना है. सो यू कैलकुलेट इट एंड डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. That's it guys, this is all for this particular Saturday CSAT session. I hope it is useful. I will continue to do it, and those which are pending in between also I'll do it. So if it is useful,
Please do like, share, and subscribe to the channel, and also share this with your fellow aspirants so that they can also learn, and we all can clear the CSAT. Thank you very much, guys. See you in the next session with another topic. Till then, take care. Happy learning.